Good morning, students. How are you all? Children, winters are approaching, so you should take care of yourself. Wear woolens, stay safe, stay healthy, wear mask, wash your hands and use sanitizer. In my previous video, I had explained at length the poem A Thing of Beauty by John Keats. Today, we will be doing the necessary and essential question answers which are important from the point of CBSE board examinations. So, listen to it very carefully, and whatever you fail to understand, you can ask me in the comments or on my personal WhatsApp. Students, John Keats was a surgeon by profession, but then he took to writing poetry because he loved nature, he loved to write poems. He belonged to romantic age, and this poem, A Thing of Beauty, is an excerpt from his poem Endymion. Endymion, as I told you, was a young shepherd, and he had a vision of goddess of moon, that is Cynthia. And he started searching her in the forest, valleys, mountains. And this is an excerpt from Endymion poem only. In the A Thing of Beauty, we had done that the natural beauty is the prime beauty, is of utmost importance. Nobody can match that beauty. There are two things, man-made beauty and nature, natural beauty. So if we start comparing the two, तो natural beauty का बच्चों कोई भी मेल किसी के भी साथ नहीं है, unparalleled, unmatched beauty है. So the first question is theme of the poem. क्या central idea है इस poem का, A Thing of Beauty? क्यों लिखा poet ने इस poem को? क्या कहना चाहता है? What is the message being conveyed? What is the central idea of the poem? What is the theme of the poem? And the theme is, number one, a thing of beauty is a joy forever. This is the very first line of the poem. A thing of beauty is a joy forever, because whenever we see a beautiful things, it gives us permanent source of joy. जब भी हम कभी ऐसी beautiful चीज़ को देखते हैं जिसको हम भुला ही नहीं पाते, तो जब कभी हम उसको याद करते हैं तो वो हमें हमेशा जॉय देता है, हैप्पीनेस देता है, हम हमेशा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो एवर लास्टिंग होता है. एवर लास्टिंग मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला. सेकेंड, इट नेवर फेड्स अवे, कभी भी डिम नहीं पड़ता, वो हमारी यादों में वो हमेशा फ्रेश रहता है. दो वी आर अवे फ्रॉम द एक्चुअल सीन ऑफ ब्यूटी, बट स्टिल इफ वी मेमोराइज इट, इफ वी रिमेंबर इट, देन we are filled with smile and happiness. Earth has countless objects of beauty. ये आप सब मानते हैं कि जो nature है, countless objects of beauty. Whenever you go for an excursion, or you go for a picnic, or you go to some place with your parents, with your friends and relatives, अगर आप कैसी ऐसी natural कहीं पर घूमने जाते हैं तो naturally आप hill stations जाते हैं, या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बीचेस हों या जहाँ पे प्लेन हो, तो वहाँ की ब्यूटी आपको मेस्मराइज करती है. मतलब आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उस ब्यूटी में कि ऐसा भी हो सकता है. और ब्यूटीफुल थिंग्स कौन सी होती हैं, जैसे आपने वेयर मैन हैज़ नॉट गॉन, वेयर मैन हैज द थिंग्स विच मैन हैज़ नॉट टच्ड हियर्स. फूलों को उगाने में आदमी जो है, जो मैन है, वो गमले में पौधा लगा देता है, फूल उसका जो उगता है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल होता है. चाहे आप किसी भी फ्लावर को देख लीजिए, वो फ्लावर्स चाहे वो रोज़ हो, चाहे वो लोटस हो, चाहे वो मैरीगोल्ड हो, या डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स हों. जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि इफ़ यू देयर आर हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, और आप हर बटरफ्लाई को अलग अलग देखेंगे तो उसकी ब्यूटी आपको दिखाई देगी कि किसी के विंग पर ब्लैक आउटलाइन है, किसी पे गोल्डन है, किसी पे डॉट्स पड़े हुए हैं, किसी पे स्ट्राइप्स हैं, तो सब अलग अलग हैं. और आप उस जो बटरफ्लाई है, तितली है, उसको आप देखते रह जाते हैं. तो अर्थ हैज़ काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं. माउंटेन्स, ट्रैकिंग के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए पैशन है ट्रैकिंग. कितना डिफ़िकल्ट होता है,
हम ऊपर से नीचे से देखते हैं माउंटेन को तो हम इतने सोचते हैं कि हाउ इट्स सो डिफ़िकल्ट, कैसे लोग जा रहे हैं। तो पैशन है उस नेचुरल चीज़ पे। ग्लेशियर्स देखिए, बर्फ़ से ढके हुए जो माउंटेन्स हैं दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। तो वो कितना ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ें होती हैं जो मेस्मराइज करती हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं हम उसको देख के, और हमारा सारा पेन एंड सफरिंग, पेन और फ्रस्ट्रेशन जो कुछ भी है वो रिमूव हो जाता है जब हम इतनी ब्यूटीफुल चीज़ों को देखते हैं। सपोज़ यू आर सैड, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, यू आर इन पेन, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर डिसअपॉइंटेड, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और आप वॉक करते हुए किसी छायादार पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे द बर्ड्स आर कमिंग एंड गोइंग टू एंड फ्रो, वो जा रही हैं, या कोई सुंदर फ्लावर है या उसकी लीफ आके आपके पास गिरती है, तो आप उसकी लीफ जो होती हैं इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि आप देखते रह जाते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने पेन और सफरिंग को भूल जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर? क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है जॉय फॉर एवर, क्यों कहते हैं हम उसको कि जॉय फॉर एवर है? बिकॉज इट हैज़ एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय, परमानेंट सोर्स ऑफ, थिंग्स आर बीइंग रिपीटेड। आप अगर ये जो मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स, अगर आप इनके 5 या 6 पॉइंट्स याद कर लें, द होल पोम इज कवर्ड। तो यहाँ पर एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय, देन लवलीनेस इंक्रीजेस विद द टाइम, इट नेवर फेड्स अवे। आप आज कहीं किसी भी हिल स्टेशन से आप आज होकर आएँ, चाहे आप केरल में मुन्नार गए हैं या मसूरी गए हैं, शिमला गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, और आप जब वहाँ से आ जाते हैं वापस, तो आप उस चीज़ को याद करके कितने दिनों तक फ्रेश रहते हो। बट आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो इफ़ यू ट्राई टू रिमेंबर दैट कि हम गए थे वहाँ पे, या कोई कहता है हमें जाना है मसूरी, आप कुछ बताएंगे उसके बारे में, तो आप बताते हो कैंपटी फॉल्स हैं और धनौल्टी है, सारी चीज़ें के बारे में आप बताते हैं उनको, और आपका चेहरा जो है फिर वही स्माइलिंग उसमें भर जाता है, हैप्पीनेस, यू आर रीलिविंग द मोमेंट्स। आप अपनी विजिट को रीलिव कर रहे हैं उनके साथ, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आप कल ही होकर आए, इतने अच्छे से बता रहे हैं। तो लवलीनेस जो होती है इंक्रीजेज विद द टाइम, समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। एंड इट गिव्स प्लेजर टू बिहोल्डर, बिहोल्डर मतलब देखने वाला, ये प्लेजर देता है बच्चों, खुशी देता है जो भी इन ब्यूटीफुल चीज़ों को देखता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज लवलीनेस इंक्रीजेज विद टाइम? ये हम कैसे कहते हैं? ये पहली ही लाइन है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद टाइम। कैसे? हम कैसे कह सकते हैं कि लवलीनेस इंक्रीज हो रही है? जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट अभी डिस्कस करा है सेम है, बिकॉज क्रिएट्स जॉय इन द सोल दैट विल लास्ट फॉर एवर। कोई चीज़ होती हैं जो सरफेस लेवल पे होती हैं, आप जाते हैं, देखते हैं, भूल जाते हैं। आपको हम यहाँ से लोकल टूर पे अगर लेकर जाएं तो हम आपको 5 या 6 प्लेसेस पे ले जा रहे हैं, या 3 या 4 प्लेसेस पे ले जा रहे हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि आप उन प्लेसेस को में से आपको एक ही चीज़ याद रहती है, यहाँ गए थे, वो कितना सुंदर था, वो कितना ब्यूटीफुल था। ठीक है, जैसे बायोडाइवर्सिटी पार्क लेकर गए थे, तो वहाँ की भी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, पॉन्ड है, डिफरेंट तरह के वहाँ पे इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, बोट्स हैं, तो आप जितनी भी जगह पर गए होंगे आपको एक वही चीज़ याद रहेगी, बिकॉज दैट प्लेस इज़ फिल्ड विद नेचुरल ब्यूटी। आप उस चीज़ को देख रहे हैं। तो क्रिएट्स जॉय इन द सोल, जो आत्मिक शांति देती है, जो आत्मा को शांति देती है, वही चीज़ जो होती है वो ब्यूटीफुल होती है, बिकॉज इसका लेना देना आपके शरीर से ज़्यादा मन से है। क्रिएट्स जॉय इन द सोल, आपकी आत्मा को शांति देती है। हैज़ पावर टू हील एंड गिव हैप्पीनेस, आप अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं, हीलिंग पावर है, आपको ठीक करने की पावर है, आपके डिजीज़ को ठीक करने की पावर नेचर के अंदर है। एंड गिव हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस आप खुशी देती है। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता रहता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे दिस इज़ आई एम टेलिंग यू बिकॉज इफ़ यू आर आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल ऑन समथिंग, सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन इंक्लूड दैट आई एम टेलिंग टू यू। कि आप देखते हैं कि आजकल कोई भी बीमार पड़ता है तो उनको एलोपैथिक एक टाइप होता है हीलिंग का, एक होता है होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तिब्बतन मेडिसिन, और एक जो नया है वो है नेचुरोपैथी।
नेचुरोपैथी मतलब नेचर के साथ रहकर आपकी हीलिंग जब होती है, उसको कहते हैं नेचुरोपैथी। आप जाएंगे, बहुत सारे नेचुरोपैथी के भी सेंटर्स हैं, बहुत सारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स भी हैं। कहीं पर भी आप जाते हैं, अगर नेचुरोपैथी के पास जाएं तो वो आपको बताएंगे कि मिट्टी के कांटेक्ट में रह के आप कैसे अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और वाकई में आप एनर्जेटिक फील करते हैं, रिफ़्रेश फील करते हैं जब आप वहाँ पर जाते हैं। नेचर ठीक करता है। एज यू माइट हैव हर्ड दैट इन सोना विच इज़ इन हरियाणा, वहाँ पर एक पॉन्ड है जो कि सल्फ़र का पॉन्ड है, और कहते हैं कि इफ़ यू टेक बाथ इन दैट पॉन्ड ऑल योर स्किन डिजीज़ आर हील्ड। अगर आपको कोई भी स्किन की डिजीज़ है तो वो ठीक हो जाती है अगर आप सोना के जो पूल है वहाँ पे अगर आप नहाते हैं तो यही जो चीज़ है नेचुरोपैथी आपको हील करती है अंदर तक, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज नेचर हेल्प अस? प्रकृति कैसे हेल्प करती है हमारी भावनाओं को ठीक करने के लिए? अगर हम बहुत सैड हैं उसको ठीक करने के लिए तो नेचर का क्या रोल होता है उसमें? लाइफ इज़ फुल ऑफ सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। देखिए, लाइफ है, आपकी लाइफ है, लाइफ में अप्स भी हैं और डाउन भी है। लाइफ स्टैटिक तो नहीं है, एक जैसी तो नहीं चलती, और अगर लाइफ हमारी एक जैसी चलती है तो बहुत ही डल और मोनोटनस होती जाती है। लाइफ शुड बी इवेंटफुल, और इसमें अप्स भी आते रहते हैं, डाउन भी आते रहते हैं, सक्सेस भी होती है और फेलियर भी होती है। पर इन सब से जुड़कर अगर हम अपनी नेचर को नेगेटिव बना लेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में रहेंगे, विल बी इन डिफ़िकल्टी। क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, हमारी ज़िंदगी में दुख भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, निराशा भी है, और हमें जो लोग मिलेंगे, डर्थ मतलब मैंने आपको बताया था जब व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द पोएम, द डर्थ मीन्स स्कैर्सिटी। तो डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स भी है। नोबल नेचर्स मतलब अच्छे नेचर वाले लोगों की भी कमी है यहाँ पे। तो हमें हर लोग एक जैसे नहीं मिलते। आप अगर देखेंगे, व्हेन योर ECG इज़ ऑल्सो फुल ऑफ कर्व्स, अगर ECG फ्लैट हो जाती है, व्हाट डज दिस मीन? दैट अ पर्सन इज़ डेड। जब आपकी ECG, आपकी हार्ट रेट दिखाते हैं, ECG मेजर करती है आपकी हार्ट रेट को, और अगर ECG फ्लैट होती है इट मीन्स वी आर डेड। तो अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़रूरी हैं। और नेचर कैसे हेल्प करती है? Man's life becomes worth living when we come in contact with the beautiful things. अगर हम सब कुछ हट के नेचर की तरफ आ जाएंगे, ब्यूटीफुल थिंग्स की तरफ आ जाएंगे, तो हमारी लाइफ वर्थ लिविंग हो जाती है। आप इमेजिन करिए, नेचर इज़ द बेस्ट हीलर, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, फिलोसोफर एंड गाइड, बिकॉज नेचर नेवर बिट्रेज अस। हमें कभी भी बिट्रे नहीं करती है, हमें कभी भी धोखा नहीं देती है नेचर, कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचती है। इसलिए हमारी लाइफ जो होती है वर्थ लिविंग, रहने योग्य हो जाती है जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं। देन इट लिफ्ट्स द व्हील ऑफ ग्लूम। व्हील होता है पर्दा, ग्लूम होता है सैडनेस, दुखी। हमारा जो व्हील है, हमारा जो पर्दा है सैडनेस का, उसको भी ये उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम। यहाँ पे बेटा मैंने मेंशन्ड इन द पोएम लिखा है, अदरवाइज अगर वो नहीं लिखते हैं आपको मेंशन्ड इन द पोएम, तो सीरीज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, एंडलेस ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कि आप वहाँ पर अपने रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो अपने आंसर शीट में। पर अगर आ जाता है कि पोएम में कौन सी लिखी हुई हैं, तो पोएम में लिखिए सन। सन ब्यूटीफुल है, सन इज़ माइटी, सन इज़ स्ट्रॉन्ग, सन इज़ ब्यूटीफुल। देन कम्स द मून। मून हमें पीस, हमें शांति देता है, काम देता है, सेरेनिटी देता है। शेडी ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और ट्रीज़ जो हैं चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, ब्यूटीफुल होते हैं और हमें शेड देते हैं, हमें छाया देते हैं। क्लियर रिल्स। क्लियर रिल्स का मतलब होता है बच्चों कि स्ट्रीम्स, नहर, बिल्कुल साफ दिखने वाली नहर। आप अगर जितना आप ऊंचाई पर जाते रहेंगे आपको पानी बहुत साफ दिखाई देगा, क्योंकि वो माउंटेन्स में से पानी आ रहा है, वो हिमालय से पानी आ रहा है, तो पानी आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। और नीचे नीचे वो आते आते पानी गंदा होता जाता है। जैसे यमुना का पानी आप देखेंगे तो किसी किसी जगह पानी कितना गंदा होता है, पर अगर आप जाएंगे ऋषिकेश जाएंगे, आप हरिद्वार के पहले ऋषिकेश अगर आप जाते हैं तो ऋषिकेश में आप देखेंगे कि पानी कितना साफ़ है, क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है, कोई भी उसके अंदर पॉल्यूशन नहीं है।
तो क्लियर रिल्स, जो ये नहर बह रही है, क्लियर रिल्स, ये भी बहुत ब्यूटीफुल होती है। देन डैफोडिल्स, the poet has mentioned daffodils also in the poem. Daffodils हैं हमारे येलो और वाइट कलर के फ्लावर्स और बहुत सुंदर होते हैं, बहुत फ्रेग्रेंट होते हैं। Then comes the green bushes of the forest. फॉरेस्ट में जो ग्रीन बुशेस हैं वो भी बहुत सुंदर लगती हैं। मस्क रोजेज़ हैं, मस्क रोजेज़ आप जानते हैं, रोज़ मस्क मतलब आपको अच्छी फ्रेग्रेंस, अच्छी स्मेल देने वाला रोज़। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये उन्होंने हेवन के लिए लिखा है कि जब भगवान हमें अपने हेवन्स ब्रिंग, इतने हेवन में बैठ के, स्वर्ग में बैठ के वो सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे ऊपर, हम धरती वालों के ऊपर उड़ेल रहे हैं। इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक होता है अमृत, नेक्टर, जो कि फाउंटेन दे रहे हैं हमें उड़ेल रहे हैं हमारे ऊपर वो सारी चीज़ें। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं? तो सबसे पहले हमारी बीमारी, हमारी इलनेस, वी आर इन ए बैड हेल्थ। जब हम बीमार होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। पर आपने अक्सर देखा होगा दैट इफ़ ए पर्सन इज सिक एंड द विजिटर्स आर कमिंग टू सी हिम, उसको मिलने के लिए उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि फ्लावर्स लेकर आते हैं, फ्रेश फ्लावर्स लेकर आते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद में आप भी रिफ़्रेश हो जाते हैं। यू आर ऑल्सो फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड जॉय। ला के फ्लावर्स देते हैं ना कि प्लीज़ रिकवर सून, आपकी स्पीडी रिकवरी हो। क्यों देते हैं? बिकॉज फ्लावर्स आर ए पार्ट ऑफ नेचर। और जो अनहेल्दी होता है पर्सन, जो डिजीज़ड होता है, जो सिक होता है, जो इल होता है, तो उसको वो फ्लावर्स दिए जाते हैं और वो खुश हो जाता है। तो नेचर हमारी हेल्प करता है इसमें। फिर है ईविल वेज। ईविल वेज क्या होते हैं? कि कोई हमारे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, अ पर्सन इज़ डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अस। कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई हमें डॉज कर रहा है, तो ये ईविल वेज, ये कॉज सफरिंग। फिर होपलेसनेस, जब हम निराशा से भर जाते हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन। आपको अगर इफ़ यू रिमेंबर द पोएम दैट वी डिड कीपिंग क्वाइट, उसमें था व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड नेचर इज़ अलाइव। जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया तो कहीं से एक पौधा फूटता है, इसका मतलब नेचर इज़ एट इट्स वर्क। तो जब हम बिल्कुल होपलेसनेस में भर जाते हैं कि अब कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा, तो नेचर हमें अलाइव करता है। बेटा ये जो मैं आपको कराई, अभी तक मैंने जितनी भी पोम्स कराई हैं और लेसन हम करा रहे हैं, अगर आपको आर्टिकल लिखने के लिए आता है तो आप रेफरेंस दे सकते हैं, ताकि द एग्जामिनर वुड बी मोर देन हैप्पी दैट यू हैव स्टडीड द एंटायर टेक्स्ट। आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं तो आपके मार्क्स और बढ़ते हैं, ठीक है। तो होपलेसनेस में अभी मैंने आपको बताया, जब आप निराशा से भर जाते हैं। डेथ ऑफ नोबल मैन, जब अच्छे लोगों की डेथ होती है तो वास्तव में हम मन से दुखी हो जाते हैं। जैसे उस दिन भी मैंने आपको कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी डेथ पर सारा का सारा जो नेशन था वो मोर्न कर रहा था। इवन आप और भी लीडर्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ हमें इंस्पायर करती है थ्रू आउट। देन जेलसी और हेट्रेड, ये तो दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि कोई हमारे से ईर्ष्या कर रहा है, कोई हमारे से नफ़रत कर रहा है, तो जो नफ़रत कर रहा है वो ही उस चीज़ में घुला जा रहा है कि मुझे कैसे इससे रिवेंज लेना है, कैसे इसको मुझे नीचा दिखाना है। तो इसमें जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो भी आदमी फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन हो जाता है। एंड ग्लूम, ग्लूम मतलब सैडनेस, और डार्कनेस, डार्कनेस इज़ द साइड ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर, ठीक है। एक होता है डार्कनेस और एक होती है ब्राइटनेस। हमारे कैरेक्टर का ब्राइटनेस और डार्कनेस क्या है? डार्क क्या होता है? नेगेटिव। डार्क क्या होता है? विलेनस, ठीक है, डार्क शेड है। आपने कई बार सुना होगा, जो भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, आप मूवीज़ देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ इस बार मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, इस मूवी में मुझे डार्क शेड करने के लिए मिला है। डार्क शेड मतलब विलन, नेगेटिव रोल करने के लिए मिला है। तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, दे कॉज सफरिंग एंड पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयरफॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बेंड टू बाइंड अस टू द अर्थ? हाउ? ये एक उसमें लाइन थी, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बेंड टू बाइंड अस टू द अर्थ।
ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था बच्चों कि जो लिटरल मीनिंग होता है और जो सिंबॉलिक मीनिंग होता है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। लिटरल मीनिंग जो हम पढ़ रहे हैं और हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वैसे ही हम समझ रहे हैं, और सिंबॉलिक मीनिंग होता है कि पोएट ये बात कहना चाहता है इसके थ्रू। इसका मतलब खाली यही नहीं है कि फ्लावरी बैंड आप फूलों की माला बना रहे हैं जो आपको धरती से जोड़े रखती है। इसका ये भी मतलब होता है कि जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हमारे अराउंड, जब हम उनको सोचते हैं तो वो हमें अर्थ से कनेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं वो हमें नेचर से कनेक्ट करती हैं। अब जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप प्लांट देखो वो हमें उससे कनेक्ट कर रहा है, आप नेचर से कनेक्टेड रहते हो जब आप इन ब्यूटीफुल थिंग्स को अपने मन में सोचते हो। ज़रूरी नहीं है इसका मतलब कि माला बना रहे हैं, माला किस चीज़ की? ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स विच वी हैव सीन, एंड व्हेन वी रिमेंबर देम वी आर कनेक्टेड टू द नेचर, एंड देन वी फाइंड लाइफ वर्थ लिविंग। और हमें लगता है कि लाइफ वास्तव में वर्थ लिविंग है, जीने योग्य है, जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर आई विल बी डूइंग मोर क्वेश्चंस। एक हमने थीम का पढ़ा, थीम और ये सारी बेटा सेंट्रल आइडिया और मैसेज कन्वेड थ्रू द पोएम, और सेंट्रल आइडिया, थीम, ये सारी चीज़ें एक है। अगर कुछ भी इन तीनों में से आता है आप यही सारी चीज़ें लिखेंगे। एंड इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द पोएम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड द पोएम, because if you've understood it you can answer any question which has come to you। आप सब कुछ आंसर कर सकते हैं अगर आपने पोम को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो बेटा पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, तब आप अपनी ही लैंग्वेज में उस चीज़ को लिख सकते हो। मैं आपको जितनी भी पोम करवा रही हूँ यहाँ पर, आप एक एक लाइन उसकी मैं समझा रही हूँ, पोम को मैं लिखती हूँ यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, तब मैं समझाती हूँ, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो यू हैव टू डू एवरी लाइन ऑफ इट। आपका टाइम सेव होता है इन कमिंग टू द स्कूल एंड गोइंग बैक। कितने बच्चे बहुत दूर रहते हैं, तो आप बेटा अपना टाइम टेबल घर में सेट करिए और इस हिसाब से करिए। और अब आप देखिए, ये आपको इन सारे क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो चीज़ पूछ सकते हैं। So, question number 8, human beings love life in spite of troubles and sufferings. Why? Human beings क्यों love करते हैं लाइफ को, क्यों उनको पसंद है? In spite of troubles and sufferings, because eternal beauty of various things give us relaxation and happiness. Eternal beauty, beauty हमारे साथ है permanent, ये हमें रिलैक्स करती है और हैप्पीनेस देती है। एंड वी शुड लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ सफरिंग्स, और हमें वी शुड नॉट एंड आवर लाइफ, अगर बिकॉज वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि हम अपनी लाइफ को एंड कर लें, जीवन का हम अंत कर लें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुख में हैं। वी शुड लव आवर लाइफ बिकॉज आवर लाइफ इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम द गॉड, एंड वी हैव नो राइट टू टेक दैट गिफ्ट विच गॉड हैज़ गिवन अस टू डिस्ट्रॉय दैट गिफ्ट। तो हमें अपनी लाइफ को लव करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि गॉड मेड हैं। हमें मैन मेड जो भी इतनी सफरिंग्स हैं, पेन्स हैं, उन सब से हार नहीं मानी चाहिए। वी शुड बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ ग्रेंजियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड? तो इसी में एक क्वेश्चन है। पहले माइटी डेड को मैं आपको समझाती हूँ, कौन होते हैं माइटी डेड। माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग लोग जिनकी डेथ हुई है। वो लीडर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी और स्पिरिचुअल भी, राजनैतिक भी और आध्यात्मिक भी। और फिर फिलोसोफर्स, दर्शन शास्त्री, पोएट्स हो सकते हैं, सेंट्स हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, माइटी लोग, ऐसे पावरफुल लोग जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो इनके साथ एसोसिएट, ग्रैंडियर, शान क्यों एसोसिएट है? देयर लेजेंड्स इंस्पायर अस, इनकी कहानियाँ हमें प्रभावित करती हैं। दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, बिकॉज दे हैव डन समथिंग फॉर द मैनकाइंड। That's why we are remembering them after their death also. And because of their noble nature, they are famous and after their death also. They are great, they are magnificent. उन्होंने काम ऐसे सोच के नहीं करा था कि हम इसलिए काम करेंगे ताकि हमें डेथ के बाद भी लोग याद रखें। उनके काम हैं जिनकी वजह से हम याद रख रहे हैं। उन्होंने जानबूझ के ऐसे काम नहीं किए, उनका नेचर था
उनका अच्छा नेचर था, नोबल नेचर था, जिसकी वजह से वो काम करते रहे। फिर क्लियर रिल्स का एक वर्ड आता है वहाँ पे। तो रिल्स हैं स्ट्रीम्स, स्मॉल स्ट्रीम्स हैं जो कि कूलनेस इन समर देती हैं, जो कि ठंडक देती हैं इन द फॉरेस्ट ऑल्सो। देन सिंपल शीप इज़ अ सिंबल ऑफ इनोसेंस, क्लोज एसोसिएशन विद क्राइस्ट। ये बताया था मैंने आपको कि शीप जो है इनोसेंस बेटा बिल्कुल इनोसेंट मानी जाती है, इनके साथ डिवाइन रेफरेंस इनका समझा जाता है। और ये क्राइस्ट, बिकॉज जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन अ प्लेस वेयर देयर वर सो मेनी शीप, तो इनको क्लोज एसोसिएशन इनका माना जाता है क्राइस्ट के साथ। फिर क्या क्या इमेजेस इस पोम में दी हैं पोएट ने। इमेजेस हैं ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ, जो ब्यूटीफुल कलेक्शन है इतना सारा उसका। इमेज ऑफ एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है, सन का दिया है, मून, फ्लावर्स, स्ट्रीम्स। ये मैंने 2 लिखे हैं। जितना भी पोम में दिया गया है, जो भी आप उस समय पे रिमेंबर कर सकते हैं आप लिखेंगे बेटा। और उसके बाद में लास्ट है, दिस इज़ अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस, कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं। इमेजरी है सबसे पहले, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके साथ आप फ्लावरी बेंड ये भी लिख सकते हैं। और फिर सम शेड दैट कवर्स, तो वो सारी चीज़ें जिस चीज़ की इमेजरी, जब आपको मैं पोएम पढ़ा रही थी तो उस समय पे कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में वही रील की तरह चल रहा था कि भाई हाँ दिस इज़ हैपनिंग, तो वही इमेजेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एलिट्रेशन है, टाइम एंड अगेन आई हैव टॉट यू व्हाट इज़ एलिट्रेशन, तो आप ये एलिट्रेशन खुद इसमें से ढूंढेंगे, जितने भी एलिट्रेशन हो सकते हैं, या जो भी आपको 4 लाइन्स मिलेंगी उसमें एलिट्रेशन ढूंढेंगे। जैसे कूलिंग कोवर्ट है, और सिंपल शीप है, सम शेड है, इस तरीके से आप इनको जो भी द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, अगर 2-3 लेटर्स ऐसे हो रहे हैं या 2 वर्ड्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा है, वो एलिट्रेशन है, आप ढूंढ के लिखेंगे। एंड देन दी मेटाफोरिकल काफ़ी चीज़ें हैं। आप जब व्हेन यू वॉच माय प्रीवियस वीडियो तो आप देखेंगे उसमें कि मैंने आपको बताया था कि ये मेटाफोरिकल रेफरेंस इसमें मैंने दिया था। तो मेटाफर यहाँ पर एक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये फ्लावरी बैंड ही है, कि फ्लावरी बैंड दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। पर वो फ्लावरी जो बैंड है मेटाफर है, क्योंकि उसमें ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। खाली यही नहीं है कि आप फ्लावर की माला बना रहे हैं, पर आप ब्यूटीफुल थिंग्स की माला बना रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द 14 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ CBSE एग्जाम्स। तो आप इनको, I am not asking you to learn them. Time and again I am telling you that please understand that and then write in your own words. क्योंकि बेटा it is not at all possible that you are memorizing each and every question. बहुत सारे lessons हैं, और ना केवल इंग्लिश के, आपका बहुत हिस्ट्री है, फिज़िक्स है, BS है, BST है जो आप पढ़ते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते उन सब चीज़ों को लर्न। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इन सारे क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफ़िकल्टी, गो थ्रू द वीडियोज़ अगेन एंड अगेन, आस्क द क्वेश्चंस, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।